Au kubunya jeng borok ngai hayung asai phaipano thaya sakni bagaya salsa kibili thangmani nango o naithok hayung no o naithok sangsano yakari jora kebono nasingi tongya jora phayo jora thango jora ni bagaya jora bini bagaya hakeno warama singsa koktoma kasai phaika sini deli koktoni mangpiliwo Onil Debroma mungai tipra sataku khoraksa lai thangnai talni 11 sal maribo takuk Onil Debroma no nogo saisung khe langma chojak gotheiman mani koktoma yagulo kamini lukorok salaikha emang koresi thekena bihik bo kamio korei agulio tongai bosa poriri tonimani bosai Onil Debroma kamio phaina jora sa khamiangma korei kebo bai kokbang laimung korei joak biri mai khamrok bonungnya kebo bai kokbang laya takuk Onil nogo tongkreti hik sarok bai kaham kereng kok saino nogo thumani koktoma teni salo bihik bosaino kol khlaimai nangai noganani tei khoroksa takukno thangi naiga dehni rohotani wo bosaino thoyamo kotheiman mani koktoma belaikhano wanama singsa belaikhano kha khamlaija kamne lukorok nogno khunu lukorok mungsa mari korei kebo bai boja geje theika kebo bai kokbang laije theika na sak saisung mungsa jengjal tongoi debok bithi sawi theika aborobo mungsa mari korei bini sago o tallino eba metalni 11 sal maribo bili khaksangma panda khalai lekha nogno khuni lokorok jeng koktoman bisingte saiman kha simna amchayo bono puila bono sakang simna amchayo bilibar char songsa kahini koktoma bini yagulo se kwbangma lokorok bini samung tangthani bini samung kahamo bono lokidikha phadi sungtebo kahamke sukrobo silayano bini kolgi rongni khoktei botamo tamo khlailangkha sang aborok silayano bini kamingkha hejamara dibolongni bising khobjak dongor kami post office subolsing behekni mung Bano Kumari Debroma baslani mung Ronald Debroma say
bus kamu kisah phai sono basai phun pai no jota phai yang kisah sini dikon father bini ma purisuk tongko bono ba kisah tu de kisah phai no pasang yang lang ke pasa phai de yang phai tara bina sai song chui phai jingai bina sai song हमारा दिकन फादर जी का बड़ा भाई है बड़ा भाई एक सेकंड नंबर और इसके बाद हमारा एक दिकन है दिकन फादर का छोटा भाई भी है दिकन फड़ी मानो तो ये है हमारा दिकन फादर अनिल जी का छोटा भाई और उनका मामी भी अभी भी जीवित है उनका मामी अभी जीवित है और ये उनका छोटा भाई दिकन हमारा साथ सर्व कर रहा है हमारा दिकन अनिल जी का सिस्टर है बड़ा बहन सिस्टर है और ये उनका सिस्टर बहन है वाइफ ये है वाइफ ये शाम है सिस्टर है हमारा दिकन है बरंग बंग नि सिनी गाय ते खर्चा कोयनाय सिनी फादर साधन के बासरी हमारा फादर साधन भी है रिलेटिव से फादर साधन का छोटा बहन है अपना कोट का छोटा बहन फादर साधन लोकेशन किसे पास आती यहाँ फाइटिंग मैडम यहाँ फटे सारा फादर साधन भी नहीं तारा यहाँ फटे ये फादर साधन का बड़ा भाई है बड़ा भाई फादर साधन का बीवी वो है और फादर साधन का बेटी और सारा है वहाँ पर ये है ये रिलेटिव से सिबलिंग बन सकता है इन लोग को सो नरक का जो तो ना हम भाई का नरक yang pusing kia nasi ini kisah nor bukan yang kia nasi yang kisah nasi kasih bisop sombo kahapun belai hambai dia pada nor belai hambai pada kisah sin jangan jaga thang lagi अब नती kisah testimony सानों ने बाकी जरा कहना मैंने बाकी
Tambah dengan cái Bo 1996 first time 신나와 보는 진이 believers 스탠 자스노 보 성작하여 하기 비니 삿 하이나 하이 앙비 하자 우니셔 아따노 보 여보 바이케 조인 클라이 사문 클라이 만카 앞으로는 심이 사문 카이데 जे काइटोनी सामनो किसी सा बिनी जे एस्प्रियन होतो बा बिनी जेता आसक हम जाकमने बिनी आसक खाकवा ते खाकथा ते हम जाकमती सिंनो जोबा खाते तिदुर खा काइटोनी सामनो क्या आं साइमनो सिनी ताखो হয়তোবা স্বর্গীয় যিনি ডিকন ফাদারনি বিনি ডেট ওভার হনিকে जों साइमनो 1975 आंबो सेना 1975 नो जन्म हाइकि बबाय बेले क्लोज बबाय बेले किनो थानजा खायनाय सामु खायनाय फेमोन मनि बागै ब असंसारो जे तंसाक Masaibo makanbo Pari जों सतनिनो सामु खायनाय एक्चुअली सामु खायका गाइटोनि सामुनो जों गोबां मा वाटै हिया सातुं हिया गजामा हिया हाइकि सामु खाय थांका बबाय हायनि बागिना आं बेलाय किनो आनि बखाव मोइतोमान तै बो थै थांमानि जे सालो आं थैमालिया तांगै आनि याग्रानि याक आनि मा आनि बाबु फनो आसक आनो गाइडिया तिदुन माया आबा हाइमा दंखा तानकि ब आसक गाइड खैका आसक तिदुन मुका बतैखा तिजों मथा संजाका सारा सिनाव प्राय 26 ता मतम चार्ज तेबसनाम का yang आरसी गार्ड दगो ते गोबां सारा तिफ्राव सामना खायथों ताबकि बिनि मिनिस्ट्रि लाइफ जों साइमनो बिनि मिनिस्ट्रि लाइफआव ब 1996 नि सिमी ताबकसे 2024 के कय बोसोर प्राय 28 बोसोर बिनि एक्सपीरियंस जे काइटोनि सामुखौ हायनि बागिनो जों जरा जरावो कक बांलाय फनो जरा जरावो खाकयलाय फनो हायबोनो जों सियार फेरो चिनि नखुनै तयै चिनि बसाबतिनि तयै चिनि जत्तो किसु काइटोनि सामुनो तयै फनो जों जरा जरा हामलायो जों गोबां मा साइकेल कासाबै सारा सिमनातै जों सामु खायथों तै खायले दानो तिनि काहाम काई पुइलान सिमि ताबुक सुजरा संसावै नाइति जुलाइ चिनि फादारनो तेबा हामबाय चिनरो खय मिशन प्रोविंस नेगै आचुकजा चिनि फादार सनो तेबा हामबाय जत खय मिशन प्रोविंस नेगै तिनारो मंजक नाइ चिनि खय आरसीगाट डिस्ट्रिक्ट तेसिना डिस्ट्रिक्ट नेगै जत चिनि फादार्स डिकन्स जत इवेंजलिस्ट रखनो ब्रह्म वाहन खानि हमजाकवा ते शिवजी ख्रिस्टान मुय हमबाय याफारो तेबो हमबाय मा याफारो तिनि चिनि डिकन फादार नि जत नुखुंनि बर रखंगै जत ताखु बुखु ते जत मथानि पयतो खलायनाय रखनो खानि हमजाकवा ते शिवजी ख्रिस्टान मुंबाय हमबाय याफारो फाइदियो जराव के आं किसिसा थासिङो चिनि डिकन साविग्लांखा चिनि डिकन फादारनि टेस्टमनि रक बाहाय ते आं ताबो जरा कलक मा नाहारिया बय शॉर्ट टाइम आं पारन चेष्टा खायानो
Belai kena kak hamjak nai kok tini nengai sini dikon father nonil tangnai 11 tarik ni salmario no bo sungsar no te sungjo to pan no yakari kelangka mo thana yakari kelangka haibano bo tini kathang tonglang pro bahai ke mo thaw frunglangka abono tei nei ang norok ni thanibo kisi sa share kailen bisungu omono ang tini norok ni thanibo sajaknai bo tini bini testimony to sangkhanaka bo 96 ni simino kaitani samungo bo ya priseka hnai tei tabuk 2024 bo 11 tarigo bo sungsan yakar kelangka tei bo bahino kathang tonglang pro bo japro ang to mo thani dongbor Libestan Church mo thani 2012 ni simi baptism kha bini bisingtino kaitani bini bisingti kheno ano bachari kha tei jepro baptism mongmani yagulo emon khai bo teidul kha kaitani samugo nukhungni borok ngoi mothani borok ngoi je kuno panda program nini cottage prayer hindi worship hindi nini bibinno rokom programo emon jagao bo teidul kha te phrunglang kha aborok nang pori manja blai khana aborok no moito man kha blai khana kha khamo te bini phrunglang mani a phrunglang mani jarino tabuk sik jara kaitani samugo kaitani thaniwo bo jara jarao mo thago samung rok khlaitani nugo rongyangni tongkhake a jara blai khana guide khlaio je kono samung khlaitani o buni sei sikang sikang bono jeno samung khlai phunugo abo kaisa jeng moito khlaijaknai bo ke bono phono nai tongya bo tiniwo je kono mo thani samung tangjaknai ro tongkhake abono buni sei sikang sikang no jengui phunugo abo hai ke khlaidi samung rok no hanai bo tiniwo sawi klangma tongo sawi klangma ro no jeng khlaima thanglai tabu jehetu bo kri phano jeng tabu samung rok no jeng ma khlailai sinai tiniwo jora jora bo ko khnayakai blai khino jeno jolimani bisingti phano angkha abo chini samung no mo thani samung no charina ni bagai bo jeno jora jora wo kutugo kutuk phano jeng abo chini dikon kutugo jeno kaham ni bagai no hni jeng wan sugai samung no ma khlailayo te yak segra bo jepro tini yo jagawo chini belphang mo thani ke buta tong sini tasomor borok song kahbai semor borok to belphang mo thaw jepro klaipro rogo hor sal hor 11ta 12ta rok bajuo cottage prayer rok khakai bo a jora rogo jepro sajung thana klaio kaga bo phat japun khlaiye alo loga thangai pano bon harima phayo amsak jorate bono teidul kha amsak jorate bono frunglang kha tei gobang momo thargo botlangai bo teidul kha pandargo frunglang kha tei samung tangthani abahike bosono frunglang kha tei mo thargo bahage samung khlainai bahage thansagai tonglainai amorokno bosono frungui klang kha Kaitor nona bele kana hambai tamne kei nang subrai bathang sokha or bodi nona bele hambai kaitor subrai sentine condolence or service kaitor joto pal baksa kai bini thane phailai jo kaitor nona borom khajai o kaitor nona ya phayo kaitor nang
Tino Pandano, will have to buy the direction of people Scopana Vicente, the father of Vicente, Jotopal, audience Vicente, Wakaitonum Hamri Kleinai, or Surai, on Bogate, no Dokumai, Kazanita Kope, Bukong, Bini Hitsa, Busabate, Kahampe, Bagadan, Subade. Hamri Kladi, a Kaksan. Subrai Jisu, Ninam was a son. No, speaking. So it is a nice pleasure for me that God has given this wonderful time to stand before you, the people of God. It was an unexpected moment for me when I was in Chhattisgarh. Father Tasi sent me a message that our senior deacon father Anil Dev Burma has left us and he departed to abode with his heavenly Father. और जस्ट 15 दिन हुआ मैं छत्तीसगढ़ से यहाँ आया हूँ ट्रांसफ़र हो करके। और जब मैं वहाँ पर था हमारे फादर ताशी विकार जनरल ने उन्होंने मुझे मैसेज किया कि हमारा जो सीनियर डिकन फादर है वो प्रभु की गोद में चले गए। और मुझे दुख लगा, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि हमारे डिकन फादर कौन है, किस प्रकार की उनकी सेवकाई चल रहा है। लेकिन वो परमेश्वर के दास थे और ये मुझे आशा है, विश्वास है कि उन्होंने हमारे बिलीवर्स क्रिश्चियन चर्च के साथ कुछ साल सेवकाई किया। तो उनके कॉन्डोलेंस की जो मीटिंग है, जो प्रेयर सभा है, वहाँ आज यहाँ आकर के आपके साथ और दुखी परिवार के साथ, हमारे दीदी के साथ, बेटे के साथ समय प्रार्थना में बिताने के लिए परमेश्वर ने जो मौका दिया है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगा। कुछ परमेश्वर का वचन में दुखी परिवार के लिए और हमारे लिए मैं कहना चाहूँगा। और उससे पहले आइए हम अपने आँखों को बंद करें और दुआ करें। हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर जो हर एक दुख को दूर करता है, जो हर एक क्लेश को प्रभु दूर करता है और हमारे बोझ को हल्का करता है, हमारे जीवन में शांति, आनंद, खुशी को देता है, उसी प्रभु यीशु मसीह के नाम से हे पिता परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं। इस दुखी परिवार को देने के लिए प्रभु हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन आपके पवित्र वचन प्रभु भेजिए और उनके दुखी मन को, हृदय को शांति और शांत बना दीजिएगा। पिता परमेश्वर प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। और मैं हिंदी बोलने से मैं थोड़ा कंफर्ट फील मैं महसूस करूंगा, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। और फादर तासी और हमारे रेवरेंड फादर साधन और फादर किशोर, हमारे जितने प्रीस्ट हैं, हमारे डिकन फादर हैं और हमारे दुखी परिवार यहाँ पर हैं, सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने मुझे बुलाया और परमेश्वर के वचन से हम कुछ बातें को सीखेंगे। जैसे कि द बुक ऑफ एक्लेसियास्टिस इट सेज, अगर कोई इंसान यहाँ पर जन्म लेता है और जरूर मरता है। सभी का एक समय है, बोने का समय, काटने का समय, रोने का समय, हंसने का समय, वैसे ही जीने का समय और मरने का समय। दिस इज द लाइफ सर्कल ऑफ ह्यूमन बीइंग। कोई ऐसा राजा नहीं है, कोई ऐसा कोई गरीब नहीं है, कोई ऐसा धनी नहीं है, कोई ऐसा रंक नहीं है, कोई ऐसा प्रेसिडेंट नहीं है, कोई ऐसा बेगर्स नहीं है। जब भी कोई आता है इस धरती पर कुछ दिन रह करके उसको जाना ही पड़ता है, जाना ही पड़ता है। लेकिन जब हम मसीह में हैं और हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, हमारी ये आशा है कि हम मर भी जाएंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जिस तरह कहता है कि आई एम द रेजरेक्शन एंड द लाइफ, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ, उसी वचन के ऊपर भरोसा करते हुए हमारी ये आशा है कि हम भी एक दिन क्या हो जाएंगे, जी उठेंगे।
ये परमेश्वर का वचन हमें कहता है। जब कोई हमारे परिवार से जिसको हम ज्यादा प्रेम करते हैं बिछड़ जाते हैं, गुजर जाते हैं, the loved one who departs from us, it is painful. As a family, as a members, it is painful. हमें बहुत दुख लगता है। और एक दिन अब्राहम मर गया और इसहाक ने रोया, बहुत रोया। इसहाक मर गया, याकूब ने रोया। शाऊल राजा ने मर गया और दाऊद ने रोया। लाजरस ने मर गया और उसकी 2 बहनें भी रोने लगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह वहां शांति और सांत्वना देने के लिए कहता है कि मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं। हमारे जीवन में दुख है क्योंकि हमारा प्रिय डिकन फादर अनिल ने वो प्रभु के गोद में चले गए हैं। मैं दुखी परिवार के लिए और हमारे लिए एक बात को रखना चाहूंगा। पहला थिस्सलुनीकी उसकी 4 अध्याय हमारा पवित्र वचन हमें क्या कहता है उसके बारे में मैं एक शब्द रखना चाहूंगा। फर्स्ट थिस्सलुनियंस चैप्टर 4 वर्स 13 एंड 14 मैं हिंदी में पढ़ूंगा और समझाऊंगा। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हो अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम औरों की नाई शोक करे जिन्हें आशा नहीं। क्योंकि यदि हम प्रतीति करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में मरा हुआ लिखा नहीं है, यीशु में सो गए हैं। क्या लिखा है वहां पर आपके लैंग्वेज में? 14 फर्स्ट थिस्सलुनियंस उसकी 4 और 14 का लास्ट सेंटेंस क्या लिखा है? प्रॉपर दीजिएगा। सो गया नहीं ना? हाँ, मरा नहीं है। कोई अगर सोया है वो क्या जब समय होता है वो उठ जाता है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर वचन कहता है कि यीशु में सो गए हैं। सब नहीं सोते हैं। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, यीशु के इच्छा के अनुसार चला है, उन्होंने, परमेश्वर का वचन नहीं कहता है कि वो मर गए, वो सो गए हैं। हमारा डिकन फादर अनिल ने जब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, पवित्र वचन के अनुसार बपतिस्मा भी लिया और उन्होंने परमेश्वर की जो बुलाहट था, he had a heavenly call to spread out the gospel, स्वर्गीय एक बुलाहट उसको मिला मिनिस्ट्री करने के लिए, और उन्होंने सेवकाई के लिए समय दिया, परमेश्वर का वचन को पढ़ा, ग्रेजुएशन हुआ और बिलीवर सिस्टम के चर्च के साथ वो सेवकाई भी किया, बहुत से आत्माओं को जीता और एक चर्च भी एस्टैब्लिश किया। ये सब परमेश्वर के लिए काम किए, परमेश्वर के लिए अपना श्रम दान किया। कितने दुख उठाया होगा, कष्ट उठाया होगा, और उनके परिश्रम के द्वारा यहाँ पर बहुत से बिलीवर्स बैठे हैं। आई थिंक हाँ, और इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है जो यीशु में सो गए हैं और परमेश्वर की सेवकाई करते करते दुख उठाते उठाते वो प्रभु यीशु मसीह में आज नहीं मर रहे हैं, लेकिन वो सो गए हैं और एक दिन उठेगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे तो सोए हुओं में से भी कभी आगे न बढ़ेंगे। क्योंकि ये कहता है क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरी फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हुए हैं वह पहले जी उठेंगे, और यीशु में जो सोए हुए हैं और यीशु की सेवकाई करते करते मर गए हैं उन्होंने पहले जी उठेंगे। और हमारी यह आशा है कि हमारा अनिल, डिकन फादर अनिल ने वो सो गए हैं, प्रभु में सो गए हैं और
प्रभु यीशु मसीह जब बादलों में आएगा अपने दूतों के साथ पूरी फूकेंगे और उसी समय वो जी उठेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और वो नींद से हैं और उठ जाएंगे। इसीलिए हम कहते हैं लेट हिज मेमोरी बी एटर्नल। और उनकी जो काम किया है समाज के लिए, बहुत से लोग अंधकार में थे, नरक की ओर जा रहे थे, उनको सुसमाचार सुना करके प्रभु यीशु मसीह के पास लाया, उनको बपतिस्मा दिया और एक चर्च एस्टैब्लिश किया। परमेश्वर का वचन को वो अपने जीवन में साकार किया। हमारे डिकन फादर स्वपन ने जब आकर के शेयर कर रहे थे तो मुझे एहसास हुआ कि उनके साथ बहुत समय बिताया और उनके पास बहुत कुछ अनुभूति है, कुछ सीखने के लिए मिलता है। और हमारा एक जवान अविनाश है, वो आकर के भी शेयर किया। जब वो आकर के शेयर कर रहा था मुझे अच्छा लगा। एक जवान लड़का आकर के क्या कर रहा है, अपने चर्च की डिकन फादर की जो अचीवमेंट है उसको वर्णना कर रहे थे। तो ये है रिलेशन, विश्वासियों के साथ पास्टर का रिलेशन जब होता है क्या होता है, चर्च बढ़ता है। तो क्या है, हमारे डिकन फादर अनिल ने प्रभु में सो गए हैं, लेकिन वो जी उठेंगे। वो हमारे पास और नहीं आएंगे, लेकिन हम सब उनके पास जाना है। हमारा भी टाइम आएगा, हम भी क्या करेंगे, यहीं से जाएंगे। लेकिन उन्होंने जिस तरह परमेश्वर की सेवकाई किया, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चला, परमेश्वर की वचन को सुनाया, बहुत से लोगों को अंधकार से प्रभु यीशु मसीह के पास लाया। हमें एक बात सीखनी है उनसे कि उन्होंने जिस तरह परमेश्वर की सेवकाई किया, इस धरती पर जब हम रहते हैं, जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, तो उनको याद करें और उन्हीं की तरह हमें क्या करना है, सेवकाई करना है। और उन्होंने अभी परमेश्वर के गोद में बैठे हैं। मैं ये आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ, और हमें भी वहाँ पर क्या करना है, जाना है। और यहाँ पर जो वचन लिखा है यूहन्ना 11 का 24 और 25, वहाँ पर मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान का समय वो जी उठेगा। और इस वचन के साथ मैं हमारे दीदी को और हमारे परिवार वालों को, यहाँ पर जितने भी हमारे दुखी परिवार हैं, उनको ये कहना चाहूँगा कि हमारा डिकन फादर ने अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वो जी उठेगा। प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाएगा तो भी जिएगा। और हमारा डिकन फादर ने उन्हीं के ऊपर विश्वास किया है, उनके लिए दुख उठाया, उनके लिए सेवकाई किया। और प्रभु यीशु मसीह ने, दिस इज अ प्रॉमिस गॉड लॉर्ड जीसस हैज गिवन, सो हु हैज डाइड फॉर मी ही विल रेजुरेट। और वो क्या करेगा, जी उठेगा। तो हमें दुख करने की आवश्यकता नहीं है, हमें आनंद करने की आवश्यकता है कि वो यीशु मसीह के पास गया है, क्योंकि he was the servant of God. He has spread out the gospel throughout many villages among the lot of people. So यही कहता है, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करता है? और परमेश्वर का पवित्र वचन यही कहता है। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, 2 Corinthians उसकी चैप्टर 1 3 और 4, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। वो सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। और वो शांति हमारे दीदी के लिए, हमारे साधन फादर के लिए, हमारे बेटे के लिए, और उनकी जो माँ है, बूढ़ी माँ, उनके लिए, उनके जो रिश्तेदार है, परिवार है, फैमिली एंड फ्रेंड्स है, उनको वो शांति प्रदान करे। परमेश्वर छोटे से वचन से हम सबको आशीष दें। Acknowledge the presence of our Bishop, His Grace Jacob Lord Trufanes, Reverend Father Kishore, and all the respected fathers, deacon fathers, evangelists, family members, especially the bereaved family, relatives, friends, and all the brothers and sisters. सब लोगों ने
हमारे बिलोवेड डीकन फादर अनिल के बारे में कह दिए हैं। जो लोगों ने उसके साथ सेवा किए थे उन लोगों से भी हम लोग टेस्टिमनी सुने हैं, उसका विश्वासियों से भी हम लोग सुने हैं, और हमारे आदरणीय बिशप से हम लोग परमेश्वर का वचन से उत्साहित भी मिले हैं। और मैं सोच रहा था मेरे अभी कहने का क्या बाकी है करके सोच रहा था। हम लोग जितने लोग कहना था सब लोग कह दिए। फिर भी जैसे सब लोग ने कहा है, हमारे बिलोवेड, हमारे प्रिय जो हमारे बीच में से चले गए हैं, डीकन फादर अनिल देव वर्मा को हम लोग बहुत दिल से हृदय से याद करते हैं। और जो आज का दिन में जो कॉन्डोलेंस सर्विस आप लोग बोलते हैं, लेकिन हमारे चर्च में हम लोग एक्चुअली कॉन्डोलेंस सर्विस नहीं बोलते हैं, हम लोग मेमोरियल सर्विस बोलते हैं। मेमोरियल सर्विस इसलिए कहते हैं कि जितने उन्होंने अच्छे अच्छे काम किए थे उसको हम लोग याद करते हैं, उसका जीवन को याद करते हैं, और उसका आने वाला दिनों में कहाँ जा रहे हैं, कैसे होगा, इन सब बातों को हम लोग याद करते हैं। इसलिए हम लोग मेमोरियल सर्विस बोलते हैं। एंड राइटली हमारे ऑनरेबल बिशप जी ने कहा है, इसलिए हम लोग बोलते हैं लेट हिज मेमोरियल बी इटर्नल। उनका यादगार हमेशा हमेशा के लिए आनंद तक हमेशा याद रहे, वही हम लोग बोलते हैं। तो आज का दिन में एक साइड में बहुत दुख है और दूसरा साइड में हम लोग याद भी करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए, लोगों के लिए कितना अच्छे काम किए थे, और सबसे बड़ा परमेश्वर के लिए अच्छा काम करके परमेश्वर का पास चले गए हैं। एंड वी डोंट से ही इज डेड एंड गॉन, मर के चला गया है, अभी हमारे पास नहीं है और हमेशा के लिए चला गया, हम लोग नहीं बोलते हैं। बाइबल में हम लोग सीखे हैं, बाइबल हम लोग सुने हैं, देखते हैं कि सो जाते हैं या प्रभु के पास चले जाते हैं। और हमारा सबसे बड़ा बात यही है कि हमारा पास एक होप है, एक आशा है कि हम दोबारा उसको मिलने का समय मिलेगा। जैसे बिशप जी ने कहा है, जो सो जाता है वो समय में उठ जाते हैं, वही हमारा विश्वास है। दैट इज आवर होप एंड दैट इज व्हाट द बाइबल सेज। समय बहुत हो चुके हैं, तो जैसे मैंने कहा कि मैं क्या कहूँ, किस वचन से मैं आप लोग को उत्साहित करूँ। स्पेशली हमारा जो दुखित परिवार है, हमारे जो डीकन फादर का बिलोवेड वाइफ, डियर वाइफ, हमारे रेस्पेक्टेड दीदी और उसका बेटा हमारा रोनाल्ड, तो स्पेशली दोनों के लिए, और साथ में जो एक्सटेंडेड फैमिली, ब्रदर्स, सिस्टर्स, माँ, सब का तरफ से। और मैं भी बहुत दुख हूँ, मेरा दिल उन सब का साथ है। माई हार्ट गोज आउट विद देम। मेरा आत्मा, मेरा सोच, सब कुछ उन सब का साथ है। लेकिन हम लोग उससे ज़्यादा हमारा लिमिटेशन है, हम लोग कुछ नहीं और कर पाते हैं। लेकिन हमारा प्रेयर, हमारा प्रार्थना, हमारा विश्वास हमेशा परिवार का साथ है। जितना हम लोग, हमारा जितना लिमिटेशन है, हमारा कैपेसिटी है, हम लोग कर सकते हैं हमारे साथ, हम आपके साथ हम सब हैं। तो जैसे यहाँ वचन में लिखा है, जो मर जाते, जो विश्वास करते हैं, वो यदि शारीरिक रूप से चला जाने से भी वो जीवित रहता है। उससे प्रभु यीशु मसीह ने करके दिखाया था। वो भी मर गया था, लोग सुसा मर गए, लेकिन दोबारा जिंदा हो गया, अपने लोगों का साथ, सब लोगों का साथ मिला है, खाया है, पिया है, उसका पास, उसका बाट में चले गए ऊपर। जाते समय बोला वैसे ही मैं आऊँगा, और उसने कहा जो मुझ पर विश्वास करेगा मरने से भी मेरा जैसे होगा, वही हमारा विश्वास है। लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग हम लोग के लिए ये विश्वास करना, या विश्वास करते हुए भी दुख होना, दर्द होना, पेन होना, वे सब हम लोग
इससे दूर नहीं हो सकते हैं। नो वी कैन नॉट अवॉइड इट, हम लोग इससे नहीं बच सकते हैं, ये हमारा जीवन में आते हैं। और एक बात हम लोग याद करना है कि कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोग मर जाएंगे, तो हम लोग सोचते हैं हम लोग हमेशा रहेगा, जिंदा रहेगा। You know, sometimes we don't remember, we don't think of, we will be dying. सोचते हैं कि हम लोग अपने लिए मरने के बारे में नहीं सोचते हैं, बहुत कम लोग। हम लोग सब भी मर जाएंगे, सबका लिए। जैसे ऋषभ जी ने कहा है, जो आया है वो तो चला जाएगा है, तो सबका जीवन में होते हैं। मैंने उस दिन भी हमारा बेटा रोनाल्ड को बनाया था, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द लाइफ। हम लोग ये जीवन का अंत नहीं है, और ये घटना, ये समय जो है सबका जीवन में आता है, सबका परिवार में आते हैं। हम लोग सब एक्सपीरियंस है, कोई लोग एक्सपीरियंस हुआ है और कोई लोग का जीवन में परिवार में हुआ है, और अभी कोई लोग का परिवार में और भी हो जाएंगे, और अभी इस परिवार में हो रहे हैं। लेकिन इससे इम्पोर्टेंट बात ये कि हम लोग कैसे आगे बढ़ना है, इससे ये दुखित को हम लोग कैसे विजय पाना है, ऐसे करके हम लोग कैसे आने वाले दिनों में हम लोग जीवन में आगे बढ़ना है, इस विषय में हम लोग सोचना है। और उस दिन यहाँ में फ्यूनरल का समय में मैं आया था, जो चला गया उसके लिए तो बहुत ज़्यादा दुख है, और उससे ऊपर में मेरा एक दुख था एज ए फादर, एज ए प्रीस्ट और एज ए लीडर ऑफ द चर्च। मैं सोचा था घर से निकलते समय हमारा डीकन फादर तो शरीर रूप से चला गया, लेकिन हम लोग उससे अच्छा से शांति से दिल से सब लोग मिलके विदाई करेंगे। लेकिन सिचुएशन ऐसे भी नहीं हुआ, जल्दीबाजी हो गया, और साथ में सिचुएशन ऐसे करके मैं सोचा हम लोग सब फादर लोग मिलके अच्छी तरह से उसका सामने में उसको सराउंड करके गेदार करके एकदम सब ऐसे करके हम लोग गीत का साथ, प्रार्थना का साथ और शांति से उसको खुशी से जाने देगा करके, तो हम लोग इसी रीति से भी हम लोग प्रिपेयर करके रहना है। तो बाइबल में लिखा है रोमन चैप्टर 8:35 और उससे आगे में लिखा है, हम सबको प्रभु का प्रेम से कोई भी चीज अलग नहीं कर सकते। इवन द डेड, दुनिया का जितना ताकत, स्वर्ग हो, दुनिया का हो, और कोई भी चीज, एनी पावर, इवन मौत या मृत्यु भी हमें परमेश्वर से अलग नहीं कर सकते, वही बाइबल बोलते हैं। तो जैसे हमारा विश्वास है, ही इज जस्ट डिपार्टेड फ्रॉम आवर प्रेजेंस, हमारा साथ में था लेकिन वो प्रभु का पास चला गया है, और हम भी उसका साथ जाएंगे। और हमारा एक होप है, हमारा रीयूनियन का हमारा होप है, हमारा उसका साथ में दोबारा मिलने का होप है। लेकिन ये बात को बोलने में आसान है, विश्वास करना मुश्किल है। मैं इस समय में एक टेस्टिमनी मैंने जो सुना था उसको याद करता हूँ, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैंने किसी से एक टेस्टिमनी सुना था, एक पास्टर था, वो पास्टर का बीवी, उसका वाइफ, 2 छोटे छोटे बच्चे, 2 साल और 5 साल वाला बच्चे, और यंग वाइफ, जवान पत्नी उसको छोड़ के चले गए। तो वो पास्टर जो है इतना दुख हुआ, परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना किया, क्यों प्रभु ऐसे होने दिया, आपने मेरा विश्वास को खत्म कर दिया, आपने मेरा ऐसे कर दिया, मैं अभी आपको सेवा नहीं करूंगा, आप मेरा बीवी को बचाना था, ऐसे क्यों किया करके परमेश्वर से कंप्लेन करके बहुत निराश हो गया, बहुत दुख हो गया। और ऐसे करके वो बच्चा दोनों को देख के वो चले गए, जो उसका बीवी को याद करके वो खाना भी नहीं खा पाई, ऐसे दुख में वो पड़ गए। एक पास्टर प्रीचिंग करना का छोड़ो, चर्च जाना भी उसका बहुत मुश्किल हो गया, इतना दुख हो गया। तो एक दिन सुबह का समय में वो याद करके ऐसे करके प्रभु से प्रार्थना करके, प्रभु आपने क्यों ऐसे किया, देखो ये छोटे छोटे बच्चे, मैं इसका साथ क्या करूँगा, कैसे करेंगे, मेरा सब होप, मेरा आशा सब खत्म हो गया करके वो सोच रहे थे, प्रभु से कंप्लेन कर रहे थे। समय में वो उधर ही हार्ट अटैक होकर वो मर गए।
पास्टर। जब वो मरने का बाद में वो देखता है उसका बदन उधर पड़ा हुआ है, दोनों बच्चे रो रहे हैं, वो क्या करेंगे? वो अपना बदन शरीर को देख रहे हैं। उसका बाद में ऊपर से 2 स्वर्गदूत आए, 2 angels came from heaven and they were lifting him up। ऊपर उसको उठा के ले जा रहे थे और उसको स्वर्ग में ले गया। वहाँ गेट में अब्राहम है, आइसक है, जाकब है, जॉन, पीटर लोग उधर उसको देख के, और बहुत सारे लोग जो अलग अलग जगहों से स्वर्ग में आने वाला लोग को वेलकम करके, बहुत सारे एंजल्स, लाखों एंजल्स उधर आने वाला लोग को, स्पेशली परमेश्वर का दास लोग ऐसे करके आने वाला लोग को बहुत स्पेशल वे से बैंड बजाकर, ट्रम्पेट बजाकर, बहुत सारे म्यूजिक और सारों जो एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं ऐसा बातों से उसको वेलकम कर रहे हैं। तो उसको भी सब लोग वेलकम कर रहे हैं। तो लेकिन उसको बोला है आपके लिए यहाँ हमेशा के लिए नहीं है, एक स्पेशल आपके लिए यहाँ आने दिया है करके वहाँ एक एंजल ने बताया। तो एक एंजल ने उसको यीशु मसीह के पास ले गया। तो यीशु मसीह को बोला ये आगे है। तो यीशु मसीह बोला मेरे प्रिय पास्टर, मेरा दास, आप क्यों इतना दुख है? मैं सब कुछ जानता हूँ। आई नो योर लाइफ, आई नो योर फ्यूचर, आई एम द क्रिएटर, आई एम द गॉड ऑफ योर चिल्ड्रेन। आप क्यों इतना चिंता करते हैं? आपने मुझे इतना कंप्लेन किया, इसलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया, देखा, जाओ देखो। तो उधर में बोला कि वहाँ आपका वाइफ है, उसका घर उधर में है, आप जाके देखो। तो रास्ता में जाते समय उसको हाय पास्टर करके बुलाते हैं। देखा है तो वहाँ कोई उसका छोटा समय में जिसको उसने डेडिकेट किया था, प्रार्थना कर दिया था, लेकिन बीच में चले गए, वो सब भी उधर बहुत खुशी से रहते हैं। और जो बुरा लोग चले गए जिसको उसने बपतिस्मा दिए थे, उधर भी हम लोग रहते हैं, सब लोग उसको सलाम दे रहे हैं। तो अपने बीबी का पास गया, देखा उधर पूरा उसका जीवन बदन जो है पूरा जहाँ दुनिया का बॉडी से नहीं, पूरा ग्लोरियस बॉडी से उधर घर से निकाला, पूरा बहुत ही चमक, बहुत ही सुंदर से निकाला और बोला कि आपका दुख को मैं जानता हूँ, मैंने ही प्रभु को रिक्वेस्ट किया एक बार मुझे आकर मिलने दो। ये ऐसे कहानी, इमेजिनरी कहानी जैसे है, लेकिन मैंने टेस्टिमनी जो है किसी से सुना था। तो बोला कि आप चिंता मत करो, अभी आप देख लो, शांति हो जाओ, मैं सब कुछ ठीक हूँ, मैं मरा नहीं हूँ, मैं जीवित हूँ, मैं जिंदा हूँ। आप जल्दी अपना काम खत्म करो, उसका बाद अपना समय में आ जाओ, हम लोग दोबारा मिलेंगे। उसका साथ में प्रभु यीशु मसीह उसको आशीष किया और जल्दी से उसको वापस जाओ बोला। उसका दिल शांति से भर गया, सारा दुख खत्म हो गया। वो वापस आके आते समय बोला है कि 3 दिन लग गया, 3 दिन। तो उसको देखा है तो वो ऊपर से आके देखा है तो उसका बदन को कॉफिन में रखा है, कॉफिन में रखा है। तो कॉफिन को रख के पूरा उधर में कब्रिस्तान को कूद के रखा है, कॉफिन में रख के उसको बंद होने वाला है। तो एंजल बोलता है कि जल्दी जल्दी तुम बदन का अंदर घुसो, नहीं तो तुम्हारा कॉफिन बंद हो जाएगा, तुमको निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे करके वो बदन का अंदर घुस गया, दोबारा जिंदा हो गया। तो सब लोग डर गए, यहाँ भूत आ गया है। तो बोला मैं नहीं मरा हूँ, मैं जिंदा हूँ। वो ऐसे करने का बाद ये टेस्टिमनी को उसने लोगों को बताया और उसी से मैंने ये टेस्टिमनी को वीडियो में सुना था। उसने उसका दुख को इतना उसने प्रभु को कंप्लेन करने का वजह से प्रभु ने उसको ये विजन या दर्शन देखा। तो वो दोबारा जीवित होकर परमेश्वर का सेवा करते रहा।